So, third chapter indefinite integrals, exercise 3.2b, page number 123, question number 187. We are solving the questions based on these formulae. चलो, integration of square root of 9 plus x upon 9 minus x dx. बोलिए कैसे करेंगे? 9 plus x upon 9 minus x. चलिए बताइए. हेलो. Okay. Rationalize the denominator. Correct. So I'll rationalize the denominator. I'll multiply divided by 9 plus x. क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताइए? डिनोमिनेटर को अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा 9 प्लस एक्स, तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो हो जाएगा 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 9 9 से 81, मतलब 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये बन जाएगा. सही है. नाउ आई विल सेपरेट दिस इनटू टू इंटीग्रल्स. पहला इंटीग्रल होगा, इसको मैं सेपरेट करूंगा तो 9 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस दूसरा आएगा x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इस तरह से आएगा. इस तरह को इसमें ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 9 ए की जगह पर यहाँ पर 9 है, सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 9. ओके, और यहाँ पर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. एक्स डी एक्स को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आई विल सब्स्टिट्यूट पुट 81 minus x square is equal to t. Therefore, differentiating we get minus 2x dx is equal to dt and x dx is equal to minus dt upon 2. ये क्या बन जाएगा? इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये बनेगा प्लस इंटीग्रेशन x dx की जगह पर माइनस, ये माइनस हाफ बाहर आएगा और इधर dt रहेगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताइए? दिस इज ओनली रूट टी. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, so this will become 9 sin inverse of x upon 9 minus half integration of 1 upon root t is 2 root t plus 2 gets cancelled and resubstitute for t के लिए this. So this will become 9 times sin inverse of x upon 9 minus square root of 81 minus t square plus c. Well, this is the answer. इस 81 को आप 9 स्क्वायर भी लिख सकते हो या 81 भी लिख सकते हो. Is that clear to you? Okay. यहाँ पर बोर्ड है, बुक में आंसर दिया है, यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर दिया है, which is wrong. ये करेक्ट आंसर है. Please make this correction and take the screenshot. It is clear to you. Integral of 1 upon x square plus 8x plus 12. Now यहाँ पे suppose I'll consider here method of completing square. Method of completing square. मैं आपको बताना चाहूँगा. Suppose x square plus 4x plus something something. ये किस चीज का स्क्वायर है? Can you fill in the blanks here? Can you fill in the blanks here? The thing is that ये x plus 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 4 होना चाहिए. x plus 2 to the 4. Yeah. बराबर है क्या? Isn't it? अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ x square minus 6x plus something is किस चीज का स्क्वायर? It will be x minus 1.
it will be x minus 3 का square and this is to be 9. Yes or no? Hello. तो ये जो last term होता है, this last term, how do we find out this last term? The last term is found. This is called as the first term, this is called as the middle term, and this is the last term. The last term is equal to half of coefficient of x का square. Coefficient of x here is 4. 4 का half is 2. So 2 का square is 4. Coefficient of x is minus 6. Minus 6 का half is minus 3 and minus 3 का square is 9. तो ये formula समझ में आ गया सबको? This is the way we complete the square. Did you all understand this method of completing square? Hello. Example के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. Coefficient of x जो है उसको लेना है, उसको डिवाइड करो 2 से और उसका स्क्वायर करो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द लास्ट टर्म. लेकिन याद रहे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज 1 हियर. देयर इज नथिंग, सिर्फ 1 है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 इन बोथ द केसेस. समझे क्या? अगर यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 होगा तो मैं यहाँ पर 5 नहीं लिख सकता हूँ. 5 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा. सो दिस हैज टू बी 1. Okay, now coming back to this question, this is the first term, this is the middle term, so what will be the last term? ये तो last term नहीं है, so let's calculate last term is equal to half of coefficient of x का square. What is coefficient of x का? X is 8. 8 by 2, बोलिए. 8 by 2 is 4 and 4 का square is 16. That means the last term has to be 16 here. 16 चाहिए मुझे. तो मुझे वहां पे 16 एडजस्ट करना पड़ेगा किसी तरह से. सो दिस विल गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x. मुझे 12 चाहिए तो मैं उसको प्लस 16 लिखूंगा, माइनस 4 लिखूंगा. व्हाट इज 16 माइनस 4? इट इज 12. तो मैंने कोई चेंज किया है वहां पे कुछ? नो, आई हैवंट चेंज एनीथिंग. और ये किस चीज का स्क्वायर है प्लीज बताइए? ये किस चीज का स्क्वायर है? This is square of what? It is the square of x plus 4 and minus 4 is minus 2 का square. Now which formula? I2 format. X square minus a square. Second formula. It is second formula. dx upon mx plus n bracket square minus a square. It is given by 1 upon m 1 upon 2a log of mx plus n minus a, mx plus n minus a upon mx plus n plus a. Did you understand this? ये है I2 वाला formula. Hello. Please check. So what we get here? What is m here? 1. What is a here? 2. So this is 1 upon m, मतलब 1 upon 1, 1 upon 2a, 1 upon 2 into 2 log of x plus 4 minus 2 upon x plus 4 plus 2 plus c. Okay, so that is equal to क्या आएगा देखते हैं. That is equal to 1 upon 4 log of x plus 2. 4 minus 2 is 2 and 4 plus 2 is 6, so x plus 6 plus c. Well, this is the answer. Just check whether this is clear to you all. Hello. 11th question, integral of 1 upon 1 plus x minus x square. First and foremost thing, there is no square root. So ये 4, 5, 6, 7 is out of question. 1, 2, 3 में से ही होगा. And one more thing, x square is negative here. तो x square negative सिर्फ थर्ड वाले फॉर्मूले में है. So this is the question based on the third formula. Okay, x square is negative here. Now what to do in such cases? Let's see here. Check here carefully. That is equal to integration of 1 upon, इस 1 को यहीं पर रखूंगा, माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. समझ में आ गया? dx. सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा और एक्स माइनस हो जाएगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द मिडल टर्म एंड आई हैव टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म is equal to half of coefficient of x का square. Coefficient of x is minus 1.
तो -1/2 का स्क्वायर. सो व्हाट इज द लास्ट टर्म हियर? द लास्ट टर्म इज 1/4. तो मैं लास्ट टर्म यहाँ पर लिखूंगा +1/4, लेकिन एक्चुअली मैंने लिखा है -1/4 क्योंकि माइनस साइन बाहर है. मैंने लास्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखा है? +1/4, लेकिन एक्चुअली मैंने लिखा है -1/4. तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. -1/4 +1/4. इज दिस क्लियर टू यू? क्या ये सबको समझ में आ गया? हेलो हेलो, प्लीज रिप्लाई. मुझे सुना ही नहीं है. मुझे लास्ट टर्म कैलकुलेट करना था. मैंने 1 एज इट इज लिखा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस बाहर आया, तो दिस विल बिकम x² - x. आई वांट टू कंप्लीट दिस एज अ स्क्वायर, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है. मिडिल टर्म के लिए हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, उसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर, -1/2 का स्क्वायर इज 1/4. तो मैंने +1/4 लिखा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो पहले से -1/4 है, तो मैंने -1/4 लिखा. उसको बैलेंस करने के लिए मैंने +1/4 लिखा. इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? नो रिस्पॉन्स. 1/, दिस विल बी 5/4 माइनस, ये किस चीज का स्क्वायर है? ये किस चीज का? इसका स्क्वायर रूट x. मिडिल टर्म का साइन लेना है माइनस, और इसका स्क्वायर रूट 1/2. दिस इज इट. क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? Is this okay? So this is how we solve this problem. Check that please. Okay, that's the final answer. Question number 12. Integration of 1/4x² - 20x + 17. Now, for method of completing square, मुझे यहाँ पर coefficient of x² should be 1. So I will take this 4 out. This will become 1/4 integration of dx upon x² minus 5x plus 17/4. Any doubts? Any doubts? This is the first term, this is the middle term, but this is not the last term. So we have to calculate the last term. Please answer. How do we calculate the last term? Is equal to half of coefficient of x का square. Coefficient of x is -5. -5/2 का square, that is equal to 25/4. ये है कैलकुलेशन फॉर द लास्ट टर्म. वो मुझे यहाँ पर लिखना है लास्ट टर्म. तो मैं लास्ट टर्म अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, वो टर्म मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो dx अपॉन क्या बनेगा? x² - 5x. अब देखिए, मैं जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है +17/4, लेकिन मैं यहाँ पर एडजस्ट करने जा रहा हूँ +25/4 - 25/4. और मेरा कंप्लीट स्क्वायर जो है वो ये रहा कंप्लीट स्क्वायर. इसमें पहले टर्म का स्क्वायर रूट, मिडिल टर्म का साइन और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट ये आएगा. तो ये किस चीज का स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट x, मिडिल टर्म का साइन माइनस, और इसका स्क्वायर रूट 5/2. ये x - 5/2 का स्क्वायर है. ठीक है. Whereas ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या करेंगे? देखिए, इसको गौर से देखिए. दिस इज -25 + 17, मतलब आएगा -8/2. 8/4. 8/4 का मतलब है -2. तो -2 इज एक्चुअली -√2 का स्क्वायर. माइनस साइन बीच में रहेगा, एंड दिस इज √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 × 2 = 8 आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो ये अब दिखेगा कैसे प्रॉब्लम? हाउ विल इट लुक लाइक? दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, दिस इज x - 5/2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर. अब ये कौन से फॉर्मूला? 1/x² - a². दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूले का I2 फॉर्मेट क्या होगा बताइए? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/mx + n ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a² dx is 1/m 1/2a log of mx + n - a upon
mx plus n plus a, ऐसा। What is m here? अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, प्लीज आंसर, what is m here? कोएफिशिएंट ऑफ x is m, तो m यहाँ पर 1 है, n यहाँ पर -5/2 है और a यहाँ पर √2 है, a यहाँ पर √2 है। Is this clear to you all? हेलो समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा 1/m 1/1। आप लोग सिर्फ यस सर नहीं, उसको सब्स्टिट्यूशन करके बताइए ना। मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला एग्जैक्ट दिया है, तो वहाँ पर m क्या है वो देख के बताओ ना। अभी मैं यस सर बोल के क्या होता है? कम ऑन आंसर इट 1/2a 1/2 इंटू a क्या है मैंने बता दिया आपको, तो बताओ ना यहाँ पर। अगर a है √2 तो 1/2a होगा 1/2 √2 log of, बोलिए यार, कोई आंसर नहीं पता। mx plus n x minus 5/2 minus a that is minus √2 divided by x minus 5/2 plus a that is plus √2 plus c। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एलसीएम लेके 2 और 2 कैंसिल कर सकता हूँ, सो द फाइनल आंसर इज 1/2 √2 log of 2x minus 5 minus 2 √2 upon 2x minus 5 plus 2 √2 plus c. So this is the answer. Please check whether this is clear to you all. Question number 1 में क्या करते हैं? Integral of 1/5 minus 4x minus 3x square dx. First and foremost thing, x square का कोएफिशिएंट should be 1, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, so this will become 1/3 integration of dx upon 5/3 minus 4/3x minus x square. Second, there is no square root, तो ये तीनों भी नहीं आएंगे उसमें। There is no square root. x square is minus, मतलब necessarily it is the third formula. x square is minus, बाकी दोनों में x square is plus है। अब हम क्या करेंगे? 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 5/3 को ऐसे ही रखना है, leave some space here, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, so this will become x square plus 4/3x प्लस जो भी कुछ होगा वो उसका लास्ट टर्म होगा। ओके, so this is the first term, this is the middle term, and I have to calculate the last term. Now I know that last term is equal to half into coefficient of x का square. Coefficient of x है 4/3, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर ले लो, 2 2 का 4, so 2/3 का स्क्वायर इज 4/9। मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर होने वाला है 4/9, तो मैं लिखूंगा प्लस 4/9, लेकिन मैंने एक्चुअली लिखा है -4/9, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा प्लस 4/9। चेक इफ इट इज क्लियर। ओके, अब मैं यहाँ पर एलसीएम के हिसाब से, यहाँ पर 9 है तो मैं यहाँ पर 3 से और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? ये सो बिकम 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखिए दिस इज 15 प्लस 4 19/9। ओके, माइनस ये किस चीज का स्क्वायर है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडिल टर्म का साइन और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब ये किसका स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 19/3 का स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, व्हाट फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ I3 थर्ड फॉर्मूले का I2 फॉर्मेट, 1/a स्क्वायर माइनस mx प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर dx is 1/m 1/2a log of a plus mx plus n upon a minus mx plus n. Now I was expecting this formula from you all, लेकिन नहीं बताया आपने। गुड, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं ही करूंगा सब्स्टिट्यूट, आपको बताने की जरूरत नहीं है। So this will become I is equal to 1/3 1/m. So what is a here? Root 19/3. What is m here? 1. And what is n here? 2/3. So 1/m, that is 1/1. 1/2a, 1/2 times root 19/3. Okay, log of
a प्लस मतलब √19/3 प्लस mx प्लस n x प्लस 2/3 x प्लस 2/3 अपॉन a माइनस √19/3 माइनस x प्लस 2/3 प्लस c ऑफ कोर्स। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। This 3 gets cancelled and the final answer will be I is equal to 1/2 √19 log of LCM लेके क्या बन जाएगा √19 plus 3x plus 2 upon √19 minus 3x minus 2 plus c. Well, this is the answer. Please check whether this is clear to you all.